اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو شخص رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خرافات اور بدعات کو چھوڑ کر اپنے آپ کی زندگی کو سنوارنا، یہی اصل زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ کہ محرم غم کا مہینہ ہے، اور کسی کے ہاں اگر کوئی مر جائے تو اس میں ڈھول تاشا لے کے جائے گا آدمی تو کیا سوچے گا؟ میں جاسمین ناز بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ 40 گاؤں کا مرکز اربا میں نہیں نکلا محرم کا جلوس۔ مدرسہ مظہر العلوم اربا میں طالبہ روزہ رکھ کر حضرت امام حسین کو کیا گیا یاد۔ مدرسہ مظہر العلوم اربا میں روزہ رکھ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہادت حضرت امام حسین کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر مفتی ابو عبیدہ امام و خطیب جامع مسجد اربا اپنے خطاب میں شہادت حضرت امام حسین کی حیات زندگی پر روشنی ڈالی۔ 40 گاؤں کا مرکز کہے جانے والا اربا میں مرکزی کمیٹی شہادت حضرت امام حسین کی شوق میں نہیں نکالا محرم کا جلوس۔ مدرسہ مظہر العلوم اربا میں مدرسہ کے استاذ محترم و طالبہ روزہ رکھ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ شہادت امام حسین کو کیا یاد۔ محرم کو لے کر شہادت امام حسین کی حیات زندگی پر پرکاش ڈالا گیا۔ گرامین چھیتر میں 40 گاؤں کا مرکز کہے جانے والا مدرسہ مظہر العلوم اربا میں شہادت حضرت امام حسین کی شوق میں روزہ رکھ کر دعا کیا گیا۔ مرکزی کمیٹی اربا کی پہل سے نہیں نکالا گیا محرم کا جلوس۔ اسلام دھرم کے انتم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی حضرت امام حسین سمیت 72 لوگوں کی کربلا میں ہوئی تھی شہادت کی یاد میں پورے ملک میں شوق جاری ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو نواسائے رسول حضرت امام حسین اسلام کی خاطر شہید ہو گئے تھے۔ محرم کا پورا مہینہ شہادت حضرت امام حسین کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محرم کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ سیاہ اور سنی مسلم دونوں سمودائے کے لوگوں کے لیے اہم مانتے ہیں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسلامک سال کا پہلا مہینہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ شنیوار کو منایا گیا۔ مسلم سماج کے لوگ روزہ رکھ کر امام حسین کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں۔ محرم میں شانتی قائم رکھنے کو لے کر اربا مرکزی کمیٹی کے ذمہ داران ساتھی سکریہ دکھے۔ موقع پر مفتی ابو عبیدہ امام و خطیب جامع مسجد اربا، مفتی وسیع الرحمان ندوی، ناظم تعلیمات مدرسہ مظہر العلوم اربا، امتیاز عہدار مرکزی کمیٹی صدر اربا، ادیب وقتہ شاہد انصاری، آفتاب عالم عرف ببلو، ہمایوں انصاری عرف نعیم، مصطفیٰ ببلو، مبارک انصاری، سرفراز انصاری، عبدالحفیظ انصاری، جکی انور و مدرسہ کے طلبہ سمیت انیہ گرامین اپستھت ہوئے۔ اس میں ہر ایک کی عزت کی جائے گی، کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کو ستایا نہیں جائے گا، کوئی لڑنا بھی چاہے تو اس سے لڑا نہیں جائے گا۔ یہ حکم قرآن کریم نے دیا ہے، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے یہ حرمت والے ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھو۔ انہی میں سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے۔ 10ویں محرم کے 10 تاریخ بہت اہم ہے۔ یہ عبادت کا دن ہے، ریاضت کا دن ہے، روزے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو شخص رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 1 سال تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کھانا پینا نہیں کیا ہو، بھوکے ہو، آج کا روزہ رکھ لے، اور جو لوگ کھا پی لیے ہیں وہ اس طرح سے رہے کہ گویا وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو 10 محرم کے روزے کا خاص اہتمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آج امت اس سبق کو بھول گئی ہے اور لوگ ناچ گانے میں، ڈھول تاشے میں، میوزک میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ دن روزہ رکھنے کا تھا، تلاوت کرنے کا تھا، اپنی آخرت سنوارنے کا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ پیغام جائے اربا سے کہ لوگ آئندہ کے لیے 10 محرم کو ناچ گانا کا دن نہ بنائیں، بلکہ روزہ، عبادت، مہمان نوازی اور ایصال ثواب کا دن بنائیں اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام میں اور خصوصی طور پر ہندوستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اور یہاں جس مذہب کی بات ہو رہی ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام میں تعزیہ داری کی، خرافات کی، بدعات کی، رسم و رواج کی کوئی جگہ نہیں۔ مدرسہ مظہر العلوم میں صرف آج ہی نہیں بلکہ کئی سال جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے تب سے اب تک صرف اور صرف
शरीयत ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसी को करवाया गया है। बच्चे आज भी रोज़ा रखते हैं, पिछले कल भी रोज़ा रखे थे और मुकम्मल आज 10वीं मुहर्रम को सुबह से लेकर अब तक तिलावत का काम किया जाता है। मुहर्रम की असल देखा जाए तो कोई हकीकत नहीं है, वरना 10वें मुहर्रम की ये फजीलत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे और बाद में उन्होंने जो तज़किरा किया क्योंकि उस वक्त यहूदी भी रोज़ा रखते थे, इसलिए खालफुल यहूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि यहूदियों की मुखालफत करते हुए या तो 9वीं या 10वीं को या तो 10वीं और 11वीं को रोज़ा रखना है। वसीउर रहमान नकवी, नाज़िम तालीमात, मदरसा मजहरुल उलूम इरबा। इरबा में हम लोग मुहर्रम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए हैं उसके एतबार से हम लोग मुहर्रम मना रहे हैं। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं ये मुहर्रम में मना रहे हैं। हम लोग ढोल ताशा वगैरह वगैरह जो खुराफात चीज़ है उसको बिल्कुल नहीं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इलाके में और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि मुहर्रम गम का महीना है और किसी के यहाँ अगर कोई मर जाए तो उसमें ढोल ताशा लेके जाएगा आदमी तो क्या सोचेगा। लेकिन हम खासकर तमाम उलमाओं से भी ये कहना चाहते हैं कि तकरीर के ज़रिए जुम्मा के दिन हर मुसलमान को मौका मिलता है अपने समाज को इस्लाह करने के लिए, तो अपने समाज को कम से कम जुम्मा में इस्लाह करके इन तमाम खुराफात कामों को छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो फरमाए हैं उसके एतबार से 10वीं 9वीं 10वीं को मुहर्रम हम मनाएंगे तो हमारा आखिरत बनेगा। मैं तमाम फिरके वाले से भी कहता हूँ कि अपने उलमाओं से पूछें कि कुरान क्या कहता है और हम क्या करते हैं, ये सब सभी को जानना चाहिए। और इरबा में इंशाअल्लाह हम लोग इसका आज आगाज़ किए हैं। अब 9वीं और 10वीं को हम लोग मुहर्रम पूरे गांव के लोग इसी तरह मनाएंगे। आज हमारे तमाम गांव के माएँ बहनें भाई चचा तमाम लोग रोज़ा में हैं और रोज़ा रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह 10वीं के रोज़ जो है अभी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, यही 10वीं तारीख में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को रूह फूके, यही 10वीं तारीख को क़यामत आएगी। जो भी होगा यही 10वीं तारीख को होगा। तो इसको हम लोग अगर ढोल ताशा से मनावें और मौत हो जाए तो उसका तो अल्लाह ही सवाब वो जानेंगे। आज अभी सुनने में आया हमको कि भाई झीरके के बगल में खेतको गांव में लोग मुहर्रम का वो क्या बोलते हैं ताजिया निशान लेके जा रहा था और कैरेट लगा और 4 आदमी, एक ही घर के 3 आदमी और एक दूसरा आदमी का इंतकाल हो गया। अब बताइए 8 आदमी घायल है। अल्लाह ताला उन लोगों को करमट जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए। चूँकि इस हालत में मरना वो अल्लाह जानेंगे और अल्लाह के रसूल जानेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हम लोग अमल कर रहे हैं मुहर्रम को। पहले वो बताते थे 9वीं और 10वीं में रोज़ा रखना और रोज़ा रख के ही हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, मातम मनाते हैं। ये ढोल और बाजा और गाजा ये डीजे उजे ले के मुहर्रम मनाते हैं, वो गलत तरीका है। ये हकीकत में देखा जाए तो आज हम लोग यहाँ प्रोग्राम किए हैं मदरसा में, यही तरीका होना चाहिए। इरबा एक मरकज़ है, देखा जाए आबादी वाला क्षेत्र, और पूरा झारखंड प्रदेश में इसका एक अलग पहचान, एक छवि, मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जाना जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहता है इरबा वासी के तरफ से? इंशाअल्लाह ये इरबा 40 गाँव का मरकज़ है और आज जिस पहल पे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रोग्राम किए हैं, आपके थ्रू से इंशाअल्लाह बहुत अच्छा ही मैसेज जाएगा कि आवाम के बीच चाहे और भी गाँवों में कि इस तरह से मुहर्रम होना चाहिए, ना कि ढोल बाजा और ना डीजे होना चाहिए। मदरसा मजहरुल उलूम में बच्चा वगैरह सबके साथ में क्या प्रोग्राम का आयोजन किया गया? आयोजन कुछ नहीं, रोज़ा रखने के बाद अफ्तारी का आइटम रखा है, अफ्तारी का आयोजन किया जाता है। अफ्तारी का आयोजन कल भी हुआ और आज भी इंशाअल्लाह अफ्तारी हुई। खास तौर पे दुआएं की गई। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हमारे नायब सदर साहब, हम नायब सेक्रेटरी और हमारे मेंबर हैं। ख़ास एक्शन ये रहा कि जो मुहर्रम का जो तरीका है, जो हमने बड़ों से सुना है, जो हमारे दीनी
हमारे ये जो है हमारे मुफ्ती साहब लोग जो बताते हैं उनके हिसाब से मेरे ख्याल से इस बार हम लोग मुहर्रम मनाएं। कैसे कि हम लोग कल भी रोज़ा रखे, सारे हमारे मदरसे बच्चा हमारे माएँ बहनें सबके रोज़ा कल भी रखें 9वीं में और आज भी रखें। ढोल ताशा ये अल्लाह का करम है कि इस बार इरबा में कहीं पे नहीं निकला, जैसे फितना होता है फसाद होता है, अच्छे लोग तो बिल्कुल उसमें नहीं रहते, फिर भी निकलता था, लेकिन इस बार अल्लाह का करम है कि कुछ नहीं निकला। और मुहर्रम हम लोग इस बार ऐसे मनाएं, रोज़ा से, नमाज से, तिलावत से, मिल्लत से, और उसी सिलसिले में अभी हम लोग मदरसा मजहरुल उलूम इरबा आए हैं, बच्चों से मिले, वो लोग भी रोज़े में हैं, हम लोग कुछ बातें शेयर किए, बैठे, कुछ मशवरा हुई और कुछ मशवरा कर इंशाअल्लाह भी हम लोग यहाँ से जाएँ। मेरा नाम मोहम्मद नईम अंसारी, नायब सेक्रेटरी इरबा। आज मदरसा मजहरुल उलूम में हम लोगों का आने का मकसद यही था कि जो आशूरा का दिन है, यह आशूरा सिर्फ मातम का दिन नहीं है, इस आशूरे में और से बहुत से जो चीज़ें हुई हैं उनको भी याद करना चाहिए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि इस आशूरे के दिन का रोज़ा रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे फजीलत वाली रोज़ा है, तो इस रोज़े को रखा जाए। और मदरसा के बच्चों ने भी रोज़ा रखा है, कल भी रखे थे, 9वीं को भी रखे हैं, आज भी रखे हैं। और हम लोगों का ये मकसद है कि जो तरीका है इस्लाम का, उस तरीके से आशूरा का दिन को ही किया जाए। और ये ढोल बाजा गाजा ताशा जो है ये बिल्कुल यहूद और नसारा का तरीका है, इस तरीके से हम लोग दूर हट जाएं तो हमारे लिए बेहतर है, और हमारे आगे आखिरत के लिए भी बेहतर है कि हम इस्लाम से वाबस्ता है, इस्लाम का जो तरीका है हम उसी को फॉलो करें, और बाकी ये जो तरीके हैं वो बिल्कुल गलत तरीके हैं। इंशाअल्लाह हम लोगों का पहल है, कोशिश है, और आगे और मजबूती के साथ इसको इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इरबा एक मरकज़ है, 40 गाँवों का मरकज़ है, इससे ऐसा मैसेज जाए कि दूसरे गाँवों को भी कुछ मैसेज मिले कि हाँ जो तरीका है इस्लाम का उसी तरीके को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश है, छोटी कोशिश है लेकिन बहुत मजबूत कोशिश है। इंशाअल्लाह अगले साल से, अगले बार से इसको और गाँव में भी इस बारे में मैसेज दिया जाएगा कि आशूरा का दिन कैसे मनाया जाए। ज़ोहर के बाद आज दुआ का नज़म था, मुफ्ती साहब ने दुआ कराया, तो यही वजह है कि आप एक मैसेज डालें, एक मैसेज दें कि आशूरा का दिन को हम लोगों को कैसे मनाना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी, मेंबर इरबा मरकज़ी कमेटी। इरबा जो है ये 40 गांव का मरकज़ है, और कोई भी चीज़ शुरुआत में कठिन होता है। अगल बगल जो बस्ती है, मैं उन भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, मेरे माध्यम से या गांव के माध्यम से, अंजुमन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुहर्रम जो है ये हम लोग रोज़ा रखें, तिलावत करें, इबादत करें, और इस्लाम में जो हुक्म दिया है सिर्फ उसी पे हम लोग अमल करें। आखरत के हिसाब से हम लोग को ज़िंदगी गुजारना है। असल मकसद हम लोग को आखरत हासिल करना है, दुनिया हासिल करना नहीं है। मुहर्रम बिल्कुल ये जो रोड में बैंड बाजा डीजे के साथ जो निकलते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये धीरे धीरे इंशाअल्लाह सभी लोग जान जाएंगे। और जिस तरह से इस बार शुरुआत हुआ है इरबा अंजुमन की ओर से, आज जो हम लोग बैठक किए मदरसा मजहरुल उलूम में, इंशाअल्लाह अल्लाह से ये उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह पाक इसका मैसेज बाकी छोटे छोटे जो गांव हैं और भी जो बस्ती है, मुस्लिम बस्ती जो मुहर्रम निकालते हैं, इसका असर उन पर भी होगा और धीरे धीरे इंशाअल्लाह ये समाप्त हो जाएगा। और असल जो इस्लाम का जो तरीका है उस तरीके पे हम लोग सब इंशाअल्लाह कायम होगा। मेरा नाम सरफराज शाहिदी है, इरबा अंजुमन कमेटी का मेंबर।